हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? टुडे आई विल टेक एक्सरसाइज 3.4 पेयर ऑफ linear equations NCERT वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ वर्ड प्रॉब्लम बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। आपका वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. The question reads, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by elimination method. तो चिल्ड्रन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिस इज गिवन ऑन पेज 57. This is second question, first part. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? So this is your question, children. अब आपके क्वेश्चन में क्या है? इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ अ फ्रैक्शन and you know the fraction has a numerator and denominator. So children, let the numerator be x and let the denominator be y. So what will your fraction become? X upon y. ATQ according to question. अगर आप क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन रीड करेंगे तो क्वेश्चन इज सेइंग वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर. सो आपका फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? x प्लस 1. एंड सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. सो सब्ट्रैक्ट 1 from y, so you get y minus 1 and the fraction becomes 1. So according to the first line of your question, आपका जो फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है इट इज़ लाइक x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल्स टू 1. दिस इज योर इक्वेशन 1. नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ योर क्वेश्चन. इट बिकम्स हाफ if we add 1 to the denominator. So denominator is y, so add 1 to the denominator. Numerator is as it is according to the question. So x upon y plus 1 is equal to, it is given in the question, this fraction becomes half. So I write this equal to 1 upon 2. So this is your second equation, right? Now children, what do you see in these two equations? The equations are in the fraction form. So we will convert these two equations in the simple general form, which is ax plus by plus c equals to 0 type, right? So इसको हम थोड़ा सा simplify करने के लिए what we can do, I will just take this y minus 1 to the numerator, cross multiplication. So what will this equation number 1 become? X plus 1. This y minus 1 will go to the RHS. It will get multiplied with 1. So your equation number 1 becomes x plus 1 equals to y minus 1. This is from 1. इसको आप रीअरेंज कर दीजिए. ब्रिंग दिस y ऑन द LHS. सो यू विल गेट x माइनस वाई. 1 को इधर ले आइए राइट साइड में, तो इट बिकम्स -2. सो आपका ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया. दिस इक्वेशन यू हैव ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो इसको हमने ब्लॉक में डाल दिया. नाउ वी विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन विच वी हैव modified from equation number 1. This is, we are labeling it as equation number 3. Now let us come to the second equation of our question. Second equation is x upon y plus 1 equals to 1 upon 2. So again we will take cross multiplication, bring 2 on this side, and y plus 1 will get cross multiplied like this. So what you will get, 2 into x will give you 2x and y plus 1 into 1 will give you y plus 1. So this is from equation number 2. We again rearrange this equation, bring y to the LHS. So this becomes 2x minus y equals to 1. So we label this equation as equation number 4. This equation 4 we have obtained फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. अब आप देखिए जो आपके इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 है ना, आपके जनरलाइज फॉर्म में आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में. सो दैट नाउ इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू सॉल्व दीज इक्वेशंस by any method. So in this question it is given that you have to solve by elimination method. So children, in my last class I have explained you the concept of elimination method solving of linear equation. So जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको ये मेथड आगे का समझ में नहीं आएगा. सो 3 एंड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी विल बी सॉल्विंग इट बाय एलिमिनेशन मेथड. सो व्हाट यू सी इन दीज टू इक्वेशंस 3 एंड 4, वाई टर्म में आप देखिए coefficient of y is 1, here also the coefficient of y is 1, both are with negative sign. So when the signs are same and coefficients are also same, as I told you in the last class, what you have to do now, subtract equation 3 from equation 4. आप equation 4 minus equation 3 भी कर सकते हैं. जब इनका sign same होता है, we have to do subtraction. Sign of y is minus, here also the sign of y is minus. When we have same sign, we have to do the subtraction. So you can subtract 3 from equation 4 or you can subtract 4 from equation 3. So I have subtracted equation 3 from equation 4. So I will write equation 4 here, and below this
you have to write the second equation, the third equation, that is x minus y equals to -2. Now this is the sign we have to write down for subtraction. Now what have to do the same procedure as I told you in my last class. जब हम subtraction करते हैं तो जो second वाला equation होता है उनके जितने भी terms होते हैं their sign we have to change, उनका sign we have to reverse. जैसे आपका ये -2 है, you write down plus below this minus sign. Now come to this sign, y का sign in the equation is minus, so you write down plus below this minus sign. X का sign is plus according to your equation, but you have to change the sign, so you write minus below this plus sign. Now when I subtract these two equations, I will have to consider the signs which I have written below the original sign, right? So how will you go about now? 1, look at this plus. You don't have to see now minus sign. 1 plus 2 gives you 3 equal to. This is minus y plus y. It will get cancelled. So this will give you 0. Now come to this term, 2x minus x gives you x. So I write down x. So what do you obtain? X equals to 3. So this is your answer for x variable. So x equals to 3, right? This is one of the answer. Now what next, children? We have to find the value of y. So I will substitute this value of y in equation 3. You can substitute it in equation 4 also. But amongst the 3 and 4, if I compare these 3 and 4, this one is much simpler. So equation 3 mein I am substituting x equals to 3. So I will substitute x equal to 3 in equation number 3. So I get this equation number 3 again I have written, substitute x equal to 3. So you will get this as 3 minus y equals to -2. Now shift this y on the right hand side. So you will obtain y equals to 5. So these are the two values which we have solved by elimination method, right children? Now question was you are required to find the fraction. What fraction? The form of the fraction we have assumed in the beginning, it is x upon y. So what your final answer will become? Fraction is equal to x upon y. Just substitute the values of x and y here, you will get 3 upon 5. So this is your final answer, right children? So this was your first part, word problem of your exercise 3.4. Now let us come to the next part, part 2. This is a problem which is related with age. Now read the question. I'm just reading it out for you. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? Here you say children, whatever age you have to find in the question, usko we will let. So what you have to let, last line आप देखो, how old are Noori and Sonu. What is being asked in the question? The age of Noori and Sonu is being asked. So whatever is asked उसी को हमने assume करना है x and y. So what will write start? How will start your question? Let Noori's present age. आपको question में जो age पूछा है वो present है, तो Noori's present age let it be x and Sonu's present age let it be y. Right? Now if you come to the first part of your question, 5 years ago, so put the heading 5 years ago. If Noori at present is x years, how much old she will be 5 years ago? 5 years ago Noori's age will be x minus 5. Similarly, agar Sonu's ka present age is y, then Sonu's age 5 years ago will be how much? Y minus 5. So these are the ages of Noori and Sonu 5 years ago. Right? Now again read the question. According to question, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. So 5 years ago, this is Noori's age, equals to thrice, this is Sonu's age. So this is how you will get the equation, first equation of your question, right? So 5 years ago Noori's age is मतलब equal to, thrice means 3 into Sonu's age. Sonu's age हमने ऊपर mention कर दिया y minus 5. So this is your equation according to the language of the question. अब इस equation को you have to simplify. So what you will do, left hand side will remain as it is. Just open the bracket, distributive law. 3y minus 15. Bring this y on the left hand side. So this is how you will get the equation in a simplified way. So ये आपका finally equation number 1 आ गया, linear equation according to the first part of your first case of your question. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के, 10 years लेटर, अगेन सम इंफॉर्मेशन इज गिवन. 10 years लेटर, हम 10 years लेटर Noori विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. तो आपको पहले 10 years लेटर के उनके एजेस निकालने होंगे, 10 years अगो वाले.
तो अगर प्रेजेंटली नूरी इज एक्स, हाउ मच ओल्ड शी विल बी आफ्टर 10 years? शी विल बी x plus 10. Similarly, सोनूज एज विल बी हाउ मच? प्रेजेंट उसका y है, तो आफ्टर 10 years इट विल बी y plus 10. Right, so these are the 10 years later ages of Noori's and Sonu. Now your question says कि 10 years later Noori is twice as old as Sonu. So 10 years later Noori's age is x plus 10 is equal to twice means 2 into Sonu's age after 10 years. So आपका इक्वेशन क्या बन गया चिल्ड्रन? x plus 10 equals to 2 bracket y plus 10. Right? तो ये लीनियर इक्वेशन को अगेन यू विल हैव टू ओपन द ब्रैकेट एंड ब्रिंग इट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म. LHS remains as it is. RHS, we open the bracket, distributive law, 2y plus 2 into 10 gives you 20. Bring this 2y on the LHS, तो x minus 2y 10 को यहाँ ले आइए राइट हैंड साइड में, तो 20 minus 10 gives you 10. So this is your equation number 2. तो फाइनली जो मैंने ब्लॉक में डाले हैं, दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दीज आर द सिंप्लीफाइड इक्वेशन विच वी हैव फाइनली ऑब्टेन फ्रॉम द क्वेश्चन. नाउ यूजिंग दीज टू इक्वेशंस वी विल सॉल्व देम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो सिमिलरली द सेम वे एज आई हैव एक्सप्लेन यू द एलिमिनेशन मैथड, वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं. अब आप इन दोनों इक्वेशन में देखिए, एक्स का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, so there is no need to do any working to make the coefficients of x equal. They are already equal to 1, right? So there is no need to multiply either of the equation by any of the number. So simply another thing what you notice is the sign is plus here, and here also it is plus. So when the signs are same, as I have told you in my last class also, we have to do the subtraction. So you can subtract equation 1 from equation 2, or you can subtract equation 2 from equation 1 also. So either way you can do. I have subtracted equation 1 from equation 2. So equation 2 को हम ऊपर लिखेंगे पहले, and below this you will be writing down, सॉरी इक्वेशन 2 को हम ऊपर लिखेंगे बिकॉज यू आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2. सो यू राइट ऑन दिस इक्वेशन 2 अबव, एंड बिलो यू विल राइट दिस इक्वेशन नंबर 1. राइट चिल्ड्रन, और ये सब्ट्रैक्शन साइन आप लगा दीजिए. अब आपने क्या करना होता है, जो सेकंड वाला इक्वेशन होता है उनके सारे टर्म्स के साइन आप चेंज कर दीजिए. आप ये देखिए माइनस है तो माइनस के नीचे आप प्लस, दिस इज माइनस, सो राइट ऑन प्लस बिलो दिस माइनस साइन, एंड दिस प्लस एक्स, राइट ऑन माइनस. नाउ यू हैव टू लुक एट दीज साइंस ओनली. सो दिस 10 plus 10 gives you 20 equals to minus 2y plus 3y gives you plus y. Come to this term x minus x, वो हो गया 0, तो there is no need to write it. So what you are left with, y equals to 20. So this is the answer for y equals to 20. आपका एक आंसर आ गया. ये किसका एज, प्रेजेंट एज था सोनू का. अब with the help of this y you will find the value of x. तो x के लिए आप क्या करेंगे चिल्ड्रन, I can put this value of y either in equation 2 or in equation 1. मैंने आपको equation 2 में शो करके दिखाया है. तो equation 2 आप यहाँ से ले लीजिए और यहाँ पर y का वैल्यू 20 सब्सटीट्यूट कर दीजिए. तो दिस विल बिकम x माइनस 2y, y की जगह 20 पुट करिए और यहाँ 10 हो गया. तो दिस गिव्स यू 2 into 20, आपका माइनस x माइनस 40 इक्वल्स टू 10. ब्रिंग दिस 40 ऑन द राइट हैंड साइड, 40 प्लस 10 गिव्स यू 50. तो दिस इज़ योर आंसर फॉर x. तो आपका ये सेकेंड वैल्यू आ गया. अब आपको क्या अज्यूम किया था, आपने x को नूरीज एज किया था, तो फाइनली आपने आंसर में क्या लिखना है, नूरीज प्रेजेंट एज विच वी हैव अज्यूम्ड एज टू बी x इज इक्वल टू 50 years, एंड सोनूज प्रेजेंट एज विच वी हैव अज्यूम्ड एज y इक्वल्स टू 20 years. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर एजेस ऑफ बोथ नूरीज एंड सोनू. आई होप चिल्ड्रन आपको ये क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट. सो दिस नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पार्ट. Now look at the third part. Let me read out the question. And the question says the sum of the digits of a 2-digit number. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक 2-digit नंबर दिया हुआ है और 2-digit नंबर में यू हैव 2 प्लेसेस. एक होता है यूनिट्स प्लेस और दूसरा होगा टेंस प्लेस. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ. आपने लोअर क्लासेस में एक्सपेंशन पढ़ा होगा. फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं 35 लिखती हूँ, 35 को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये जो 5 है यूनिट्स प्लेस पर है और जो 3 है ये टेंस प्लेस पर है. तो जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो ये मैं आपको सिर्फ आपको रिविजन के लिए बता रही हूँ बिकॉज इस कॉन्सेप्ट को विल बी यूजिंग इन दिस क्वेश्चन. तो व्हाट वी डू, ये 5 यूनिट्स प्लेस पर होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 5 into 1. फिर प्लस 3 इज़ इन द टेंस प्लेस,
तो हाउ विल आई राइट दिस, 3 इंटू 10। अब आप इसको ऐड कीजिए, ये क्या हो गया आपका 5 + 30, तो अगेन यू विल गेट बैक 35। तो बेसिकली आपको मेरे को मैं क्या समझा रही हूँ मैं आपको, जब आपके पास 2 डिजिट नंबर होते हैं तो उसको हम अगर एक्सपेंशन फॉर्म में लिखते हैं तो हाउ वी रिप्रेजेंटेड, यूनिट्स प्लेस में, प्लेस के लिए 5 इंटू 1 हो जाएगा, और ये टेंस प्लेस वाले डिजिट के लिए 3 इंटू 10 हो जाएगा। दिस इज द एक्सपेंशन फॉर्म। तो अब ये चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आपको 2 डिजिट नंबर लिया हुआ है, सो लेट अस अज्यूम दैट यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर इज x एंड टेंस प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर इज y। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यूनिट्स प्लेस में आपने x लिखा, टेंस प्लेस में y लिखा। तो जैसे मैंने अभी आपको 35 का समझाया, तो y को आप कैसे लिख सकते हो, x इंटू 1, यहाँ देखिए x इंटू 1, तो इंटू 1 को आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो दैट बिकम्स x प्लस y इंटू 10, दैट गिव्स यू 10y। राइट चिल्ड्रन, ये आपको शो कर देती हूँ, दिस इज x इंटू 1 प्लस 10 इंटू y। तो आप देखिए ऐसे ही हो जाएगा आपका, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। ओरिजिनल नंबर आपको कैसे लिखेंगे आप, 10y प्लस x, सो दिस बिकम्स 10y प्लस x। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट इन द एक्सपेंशन फॉर्म द 2 डिजिट नंबर, जो यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर x डिजिट है और टेंस प्लेस पे y डिजिट हमने एज्यूम किया हुआ है लेट करके। सो ओरिजिनल नंबर का एक्सपेंशन फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, फिर जैसे मैंने आपको 35 पर समझाया, ऐसे ही y(x) का यहाँ पर आप उसको 10y प्लस x की फॉर्म में लिखेंगे। राइट चिल्ड्रन, सो दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने अब इनका डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, मीन्स ये मैंने x को यहाँ लिख दिया और y को यहाँ लिख दिया, ऐसे करके y जो है वो यूनिट्स प्लेस पे लिख दिया और x को मैंने टेंस प्लेस पे लिख दिया। मीन्स मैंने डिजिट्स इंटरचेंज कर दिए, पहले y(x) था, अब xy हो गया। अब आप इसको एक्सपेंशन फॉर्म में देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका चिल्ड्रन, ये टेंस प्लेस पर है तो ये 10 इंटू x हो जाएगा, प्लस y यूनिट्स प्लेस पे तो y इंटू 1 हो जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट द आंसर एज 10x प्लस y। सो what will be your new number? New number is the number obtained by reversing the digits. So what you obtain after reversing the digit, expansion form में आप इसको लिखते हैं, तो this becomes 10x plus y. राइट चिल्ड्रन, तो ये हमने आपके 2 नंबर यहाँ पे, ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर, इस फॉर्म में वी हैव टू राइट इट डाउन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप लैंग्वेज पढ़िए। इट इज़ गिवन दैट 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द न्यू नंबर। टाइम्स का मीनिंग होता है चिल्ड्रन मल्टीप्लाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 इंटू ओरिजिनल नंबर इट बिकम्स इक्वल्स टू 2 इंटू न्यू नंबर। राइट चिल्ड्रन, अब ये ओरिजिनल नंबर कितना हमने ऊपर फाइंड आउट करा हुआ है, 10y प्लस x। सो आई विल जस्ट सब्सटीट्यूट ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x और 9 इंटू आपका है ये इक्वल टू 2 इंटू न्यू नंबर। अब न्यू नंबर इज हाउ मच, 10x प्लस वाई। सो न्यू नंबर की प्लेस में यू राइट डाउन 10x प्लस वाई। अब ये आपका इक्वेशन आ गया अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ये फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन एक लैंग्वेज है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यू विल जस्ट अप्लाई और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओपन द ब्रैकेट, 9 इंटू 10y 90y प्लस 9 इंटू x 9x इक्वल्स टू 2 इंटू 10x 20x प्लस 2 इंटू y 2y। अब जस्ट रीअरेंज कर लेते हैं इसको हम, ये y वाला टर्म इधर ले आते हैं, 90y और 2y एक साइड ले आइए और x वाले टर्म को राइट साइड में ले आइए। सो ना आई कैन सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स, 90y माइनस 2y बिकम्स 88y, 20 माइनस 9 बिकम्स 11x। राइट चिल्ड्रन, अब इस 11x को आप रीअरेंज करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। अब इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हैं चिल्ड्रन, यहाँ पर 88y है और ये माइनस 11x है। आई कैन टेक 11 कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसमें एक स्टेप और डाल देती हूँ। दिस इम्प्लाइज 11 कॉमन ले लेंगे तो व्हाट रिमेन्स इन द ब्रैकेट, 8y माइनस x इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर 8y माइनस x कितना हो जाएगा, 0/11 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो अब अभी देखिए इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया, 8y माइनस x इक्वल्स टू 0। तो दिस इज़ हाउ वी हैव सिंप्लीफाइड फर्दर दिस इक्वेशन। यहाँ से हम 11 कॉमन निकाल करके यू कैन स्टिल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। ये मैंने प्रोसेस आपको यहाँ शो कर दिया। सो फाइनली व्हाट विल गेट आफ्टर टेकिंग आउट 11 कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन, यू विल गेट 8y माइनस x इक्वल्स टू 0। दिस आई लेबल एज इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो चिल्ड्रन आपके फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन में लैंग्वेज था उसके अकॉर्डिंगली यू हैव ऑब्टेन्ड दिस इक्वेशन। अब आपके ये स्टार्टिंग में एक लाइन दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज़ 9।
So what are your two digits? X and y. So again according to the question, x plus y equals to 9. फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, सो आई कैन राइट x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. सो दिस गिव्स योर सेकेंड इक्वेशन. अब आप देखो आपको ये दो इक्वेशन मिल गए लीनियर फॉर्म के. नाउ आई हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस बाय विच मेथड? एलिमिनेशन मेथड. अब चिल्ड्रन यहाँ पे देखिए आपके जो x के कोफिशिएंट हैं, अब अगर साइन को इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में भी 1 है. So means now there is no need to multiply any of these equation by any number. Already you can see it is same, the coefficients are same, but the sign over here is negative, here it is positive. और जब मैंने बताया था आपको भी कि जब साइंस ऑपोजिट होते हैं आपको क्या करना होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन. यू हैव टू डू एडिशन. सो व्हाट आई विल डू, I will add equation 1 and 2, right children? So when I add them, just write down the first equation here. Below this you can write the second equation. Similar terms, like terms below, like this. Now you have to just add them. 0 plus 9 gives you 9. यहाँ आप देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स विल गिव यू 0, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो. 8y माइनस वाई बिकम्स 9y. सो व्हाट इज़ y नाउ? 9/9 विच गिव्स यू 1. सो y का वैल्यू आपके पास y इक्वल्स टू 1 हो गया. दिस इज़ वन ऑफ योर आंसर. Now you have to solve for x. So I can put this value of y either in equation 1 or in equation 2. Equation 2 is much more simpler, so I will write down substitute in this equation number 2. So put y equals to 1 in this equation number 2. So put y equals to 1 equation 2. What you will get here children? 1 plus x equals to 9. So 1 plus x equals to 9 gives you x equals to 8. So this is your second answer. राइट चिल्ड्रन. और एक्स और वाई का आपको वैल्यू मिल गया. आपको क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर. सो ओरिजिनल नंबर हमने क्या बनाया, ऊपर देखिए आप 10y प्लस एक्स. तो बस इसी में आपको एक्स और वाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो 10y प्लस एक्स गिव्स यू 10, यहाँ से y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और प्लस एक्स यहाँ से x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए. सो दिस बिकम्स 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18. सो दिस इज योर फाइनल आंसर चिल्ड्रन. ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 18. Right children? So this is your third part done. Now let us do fourth part. I hope children आपको समझ में आ रहा है. Read the fourth question. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो अब आप देखिए क्वेश्चन में कि दो टाइप के नोट्स हैं. देयर आर सम नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एंड सम आर ऑफ रुपीज़ 100. क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करने को क्या बोला कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 शी रिसीव्ड. तो वॉट एवर यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड उसी को हमको एज्यूम करना होता है. सो how will you start your question? Assumption let the number of rupees 50 notes be x and the number of rupees 100 notes be y. right? अब आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ. अगर आपके पास 50 रुपीज़ के 4 नोट्स हैं, how much money you have with you? 50 into 4 means 200 रुपीज़. अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमने अज्यूम किया नंबर ऑफ 50 नोट्स रुपीज़ 50 नोट्स आर x. So how much money with rupees 50 notes will be 50 into x. मीन्स जैसे अभी एग्जांपल बताया, आपके पास अगर 4 नोट्स हैं 50 के, तो how much money you have? 50 into 4. और अगर आपको रुपीज़ 50 के x नोट्स हैं आपके पास, तो how much money you have? 50 नोट्स के how much money you have? 50 into x. सिमिलरली मनी विद रुपीज़ 100 नोट्स कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? आपके पास कितने नोट्स हैं 100 के? y. सो how much money you have with rupees 100? 100 into y. राइट चिल्ड्रन. सो ये आपको ये चीज़ आपका फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 50x और 100 नोट्स का मनी आपके पास हो गया 100y. अब आप स्टेटमेंट फिर से पढ़िए क्वेश्चन की. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज़ 50 and 100 नोट्स ओनली एंड शी हैज़ विदड्रॉन 2000 रुपीज़. टोटल रुपीज़ उसने कितना विदड्रॉ करा है? 2000. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन लैंग्वेज आप देखिए. रुपीज़ 50
कि कितना नोट्स हैं, आप देखिए ऊपर 50x, ये मनी आपका कितना है ₹50 के साथ 50x, और ₹100 वाले के साथ कितना मनी है 100y, और टोटल मनी शी हैज़ रिसीव्ड इज़ 2000. सो हाउ मच टोटल 50x प्लस 100y विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एज इक्वल टू 2000. सो दिस गिव्स योर फर्स्ट इक्वेशन. अब दूसरा पार्ट में क्या दिया हुआ है आपका कि शी गॉट 25 नोट्स इन ऑल. 25 नोट्स इन ऑल मीन्स 50 के नोट्स और 100 के नोट्स टोटल मिला करके कितने नोट्स हैं 25. सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ₹50 नोट्स x, हाउ मेनी नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स y. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज़ योर नेक्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25. जो टोटल नोट्स हैं 50 के और 100 दोनों मिला करके 25 नोट्स है. तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25. सो दिस इज़ योर इक्वेशन 1 एंड दिस गिव्स यू इक्वेशन 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को यू हैव टू सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड चिल्ड्रन. अब आप यहाँ देखिए दोनों इक्वेशन में आपके x के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं, y के भी डिफरेंट है. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको x का कोफिशिएंट सेम करके सिखा रही हूँ. अब आप इसमें देखिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है. सो एज आई हैव एक्सप्लेन यू इन माई लास्ट क्लास, ये जब इंटरचेंज कर दीजिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे. इनके जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज कर दीजिए, उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो यहाँ पर 1 है तो आप ये वाला इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ इसमें इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 50 है तो सेकेंड इक्वेशन का 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 1 इंटू यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 वाला जो है 50 जो है इस सेकेंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो आपके ये 1 एंड 2 क्या हो जाएंगे चिल्ड्रन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 50 करके, दिस विल बिकम 50 इंटू x, सो 50x प्लस 50 इंटू वाई 50y, ये 50 इंटू 25 विल गिव यू 1250. सो इक्वेशन नंबर 2 आपका अब क्या बन गया, इक्वेशन 3. कम टू दिस इक्वेशन 1, इसको आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो देयर इज़ नो चेंज, इट विल रिमेन एज इट इज़. सो हमने यहाँ पर 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000, ये आपका इक्वेशन 1 एज इट इज़ ही रहेगा. सो अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गए. फाइनली इन्हीं दो इक्वेशंस को यू हैव टू डू द वर्किंग. अब आप यहाँ देखिए 50x जो हैं सेम टर्म्स आ गए एंड देयर साइंस आर सेम. और जब साइन सेम होते हैं यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. तो आई कैन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 और आई कैन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3. यहाँ मैंने 3 फ्रॉम 1 किया है तो 1 इक्वेशन को आई विल राइट फर्स्ट. सो इक्वेशन 1 आपने यहाँ लिख दिया 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000. इक्वेशन 3 को आप इसके नीचे लिख दीजिए 50x प्लस 50y इक्वल्स टू 1250. This is your subtraction sign. As I told you earlier also, now whenever you have to do the subtraction, you have to change the signs of the second equation के terms. So आप देखिए यहाँ पर ये प्लस साइन है तो उसके नीचे आप माइनस लगा दीजिए. This term is plus sign, put minus sign. This term is plus sign, put a minus sign. Now how will you do the subtraction? 2000 minus 1250 gives you 750 equals to 100y minus 50y gives you 50y. 50x माइनस 50x गिव्स यू 0, तो हम इनको कैंसिल ही कर सकते हैं. तो 50y इक्वल्स टू 750 यू आर लेफ्ट विथ. सो हाउ मच विल बी y, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 750 अपन 50 गिव्स यू 15. सो व्हाट इज योर आंसर फॉर y चिल्ड्रन, y विल गिव यू 15. सो दिस इज योर वन ऑफ द आंसर. नाउ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब आप x को कौन सी वाली इक्वेशन में पुट करके सिंपल वाली इक्वेशन कौन सी आपको, आप देखिए 1 एंड 2 में से कौन सा सिंपल इक्वेशन है, सेकेंड वाला इज़ वेरी सिंपल इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25. सो आई विल पुट दिस वैल्यू y इक्वल्स टू 15 इन द सिंपलर इक्वेशन विच इज़ इक्वेशन नंबर 2. तो x प्लस वाई की जगह 15 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इज इक्वल टू 25 एंड x इक्वल्स टू 10 आपका फाइनल आंसर हो गया. सो दीज आर द टू वैल्यूज़. सो वट वो योर फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स रिसीव्ड बाय मीनू इज़ 10 एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स रिसीव्ड बाय मीनू इज़ 15. Right children, so this is how you have to solve this question by elimination method. So this was your fourth part. एक पार्ट और रह गया वो भी मैं आपको करा देती हूँ जल्दी से चिल्ड्रन. This is the second question, part 5, word problem solving by elimination method. Your question reads, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब आप यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए आपको लाइब्रेरी से बुक लेने पर 2 टाइप के मनी पे करने पड़ते हैं. एक तो फिक्स चार्ज है,
जब 3 डेज़ के लिए जब आप बुक रखते हो तो आपको ₹X पे करना है. दिस फिक्स चार्ज यू हैव टू पे फॉर कीपिंग द बुक फॉर 3 डेज़, फर्स्ट 3 डेज़. उसके बाद जब आप 4th डे पे भी रखते हो, 5th डे पे रखते हो, तो हर एक नए दिन के लिए आपको एडिशनल चार्ज फॉर ईच एंड न्यू डे यू हैव टू पे ₹Y. मीन्स आपने अगर 4 डेज़ के लिए रखा है तो आपको एक एक्स्ट्रा दिन रखने का मतलब क्या, 1 into Y. 2 डेज़ और रख लिया तो 2 into Y. 3 डेज़ और रख लिया तो 3 into Y मनी पे करना पड़ेगा. राइट चिल्ड्रन. और ये जो ₹X है ये 3 डेज़ के लिए फ़िक्स है. अब आप फर्स्ट पार्ट में देखिए, फॉर हाउ मेनी डेज़ सरिता, 7 डेज़ के लिए. दिस इज़, इसको हम सरिता का लिख देते हैं यहाँ पर. ये वाला इक्वेशन मिलेगा आपको सरिता का. हाउ मेनी डेज सरिता हैज़ केप्ट द बुक फॉर 7 डेज़. तो 7 डेज़ में से 3 डेज़ तो X मनी पे करना है, ये X हो गया. अब 7 में से आप 3 माइनस कर दिए तो हाउ मच एक्स्ट्रा डेज शी इज़ कीपिंग द बुक, 4 डेज़. और हर एक नए दिन के लिए हाउ मच शी हैज़ टू पे Y रुपीज़. सो हाउ मच मनी शी विल हैव टू पे फॉर 7 minus 3 days विच इज़ 4 into Y. राइट चिल्ड्रन. तो इसको आप ध्यान से समझिए. ये तो 3 डेज़ का मनी हो गया. उसने टोटल हाउ मेनी डेज शी हैज़ केप्ट, 7 डेज़. तो 3 डेज़ में से हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट नाउ, 7 minus 3 days आर लेफ्ट. वो उतने ही डेज़ को आप मल्टीप्लाई कर देंगे Y से, बिकॉज दिस इज़ द मनी फॉर एक्स्ट्रा डेज़. सो 4 डेज़ एक्स्ट्रा रखा है तो हाउ मच मनी शी विल हैव टू पे, 4 into Y. And total money she has paid is 27. So this will become equals to 27. So this is the equation, linear equation for Sarita. X plus 4y equals to 27. This is equation number 1. अब सेकेंड वाला है आपका Suzy. ये आपका Suzy का मनी. She has kept the book for 5 days. Right? So 5 days में से 3 days का तो इतना मनी पे करना है X रुपीज़. बाकी 5 में से -3 कर दोगे तो हाउ मेनी डेज़ लेफ्ट, 2 डेज़ एक्स्ट्रा शी हैज़ केप्ट. तो 1 डे के लिए ₹Y है तो 2 डेज़ के लिए कितना हो जाएगा, 2 into Y. और वो मनी टोटल कितना दोनों का मिला के कितना पे करा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ गिवन इक्वल्स टू 21. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर Suzy, X plus 2Y equals to 21. X is for 3 days, ₹X for 3 days. और जो रिमेनिंग 2 डेज़ हैं 5 डेज़ में से 3 डेज़ तो यहाँ चले गए, बाकी के 2 डेज़ के लिए शी विल हैव टू पे 2 into Y मनी. टोटल मनी शी इज़ पेइंग इज़ 21. सो दिस गिव्स योर इक्वेशन नंबर 2. तो ये जो 2 इक्वेशंस मैंने बनाए हैं ब्लॉक में, इन्हीं को हम लेकर के सॉल्व करेंगे फाइनल. तो अगेन आप देखिए दोनों इक्वेशन में X का कोफिशिएंट इज़ ऑलरेडी सेम. सो आपका काम आसान हो गया. यू डोंट हैव टू डू एनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2 इक्वेशंस. दोनों का कोफिशिएंट इज़ 1 एंड साइन इज़ प्लस in both the cases. When sign is plus, you have to do subtraction as I have told you earlier also. So you can do the subtraction, subtract equation 2 from equation 1. आप equation 1 from equation 2 भी कर सकते हैं. तो equation 2 from equation 1, तो equation 1 को हम पहले लिखेंगे. यार आपका equation 1 लिख दीजिए और we will write below this the equation number 2. Right children, and this is the sign for subtraction. Now what you have to do for subtraction, second equation के keep on reversing the sign. This is plus 21 तो इसके नीचे आप माइनस लिख दीजिए. This is plus 2y, इसके नीचे आप माइनस. This is plus x तो put a minus sign. Now subtraction के लिए you will have to focus on these signs which you have put below. So 27 minus 21 gives you 6. 4y minus 2y gives you 2y. x minus x becomes 0. तो वो तो कैंसिल कर दीजिए. तो 2y equals to 6 हो गया चिल्ड्रन. So y will become 3. अब आपको x निकालना है तो ऑन विच इक्वेशन आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ x, आई कैन पुट इट ईदर इन 2 और इन 1. मैंने आपको 2 में पुट करके शो किया. तो x plus 2y equals to 21 गिव्स यू x plus 2 और y यहाँ से आप सब्सटीट्यूट कीजिए तो 2 into 3 equals to 21. दिस गिव्स यू x plus 6 equals to 21. सो जस्ट सॉल्व इट आउट फॉर x. 6 को आप राइट साइड पे ले आइए. दिस गिव्स यू 15. x का वैल्यू हो गया 15. सो what was asked in the question, find the fixed charge. Fixed charge को हमने क्या assume किया था, fixed charge for the first 3 days we have assumed as x. And how much a value of x, ₹15. और charge for each day, for each extra day, the additional charge for each extra day was ₹y. So what is the value of y? 3. तो answer is ₹3. तो ये आपके 2 आंसर्स आ गए चिल्ड्रन. ₹15 for fixed charge and additional charge is ₹3. Right children. So this completes your elimination method word problem question number 2 given on page 57. I hope children आपको सब समझ में आ गया होगा. Okay, bye.